Welcome all. So in this video, our learning goals are to understand how concept of LCM helps in solving linear equations, and then how to simplify the problems with larger coefficients where, let's say, calculation becomes difficult somehow. So let's solve some examples and get to know some concepts. See, let's say we want to solve these two equations. Let me write the equations. 12x minus 20y is equal to 4. Let's call this equation 1. And then 8x minus 15y is equal to 1. That is equation 2. Okay. Now let's say I want to eliminate equation like y from both equations, right? So eliminate y, that is what we want to do. A very general thing which will work in this case is multiply equation 1 by 15, multiply equation 2 by 20, and what will happen? The resulting equations, they will have the same coefficients for y, and then whatever are the resulting equations we can subtract. Okay, so see, this is not the right method. I am just telling you कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व होगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन इसमें बहुत बड़े होने वाले हैं जिसको हम एक्चुअली शॉर्ट कर सकते हैं. तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल से कि अगर मैं ऐसा करना चाहूँ, अगर मैं इक्वेशन 1 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट? सो 15 into 12, that is 300x, sorry, not 300, I made mistake now. So 150, so 180, right? 180x minus 300y is equal to 60. And if I multiply the second equation by 20, I will get 160x minus 300y is equal to 20. Now as we can see, we have the same coefficients, right, for y. That's why, let's say if we have this is equation 3 and this is equation 4, I can subtract the fourth equation from the third one. So here what I am going to do, 3 minus 4. So here we will have minus, here it will become plus, and here it will be minus. So this is 0. 180 minus 160, it is 20x, and here we have 40. In this way, we get 20x is equal to 40, so x is equal to 2. We put it in any of the equations, okay? Let's say I put it in equation number 2. So we get 8 into 2 minus 15y is equal to 1. So 16 minus 15y is equal to 1. So 16 minus 1 is equal to 15y. So 15y is equal to 15, and we get y is equal to 1. So we have solved it. लेकिन आप अगर देखते हैं तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशंस कैसे करने पड़े? मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जो ऑलरेडी लेंदी है, राइट? तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसीलिए तो हम लोग एलसीएम के कंसेप्ट को सीखे हैं. हमने इसके पहले वाले क्लास में ही हमने ये सीखा है. So let me write the equations again. So 12x minus 20y is equal to 4, and then 8x minus 15y is equal to 1. तो सपोज फिर से मैं यही पर वही डिसाइड करता हूँ कि मुझे एलिमिनेट करना है y को. लेकिन अब है ना, हम लोग ये एकदम जो पहले टाइम पे हमने बहुत वेग तरीके से सोचा था कि 20 को 15 से और 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा एकदम रॉ थॉट था. अभी हम सोचते हैं कि 15 और 20 का एलसीएम क्या है. सो एलसीएम ऑफ 15 20 इट्स 60. आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द एलसीएम. 15 के फैक्टर्स है 5 into 3 और 20 के है 5 into 2 into 2.
तो जो फैक्टर एक बार है वो एक ही बार लेंगे, दैट इज 5, राइट ना। तो एलसीएम कैसे बनता है, एलसीएम के लिए हम लोग कॉमन वाला फैक्टर एक बार लेते हैं, सो एलसीएम इज इक्वल टू 5 एक बार आया, फिर 3 इंटू टू जो बाकी के है वो एक एक बार, दैट इज इक्वल टू 60। आई होप ये आपको पहले से मालूम है, यहाँ पर इस चैप्टर में मुझे उसको ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं। दिस इज हाउ वी फाइंड एलसीएम, दैट इज 60। अब हम ये सोचेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में हमें 20 के जगह पर 60 चाहिए, यहाँ पर 60 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। सो व्हाट वी डू इज इक्वेशन 1 इंटू 3, सो ये बनेगा 36x minus 60y is equal to 12. Let's call this equation 3. और फिर इस 15 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 2 इंटू 4, सो क्या बना 32x माइनस 60y इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। आ गए यहां तक। अब क्या करना है, अब हम करेंगे इक्वेशन 3 माइनस 4, सो 36x माइनस 60y इज इक्वल टू 12 है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले हम 32x माइनस 60y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आएगा माइनस प्लस माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये होगा 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो 4x इज इक्वल टू 8 है, तो हमें x इज इक्वल टू क्या मिला, 8/4 विच इज 2, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। और फिर x इज इक्वल टू 2 फिर से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो हमने इसके पहले भी किया था। तो पुट इन 1 या 2, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। सो 8 इंटू 2 माइनस 15y इज इक्वल टू 1, so 15y is equal to 16 minus 1 which is 15, and that's why y is equal to 15/15, that is equal to 1, और हमारा आंसर है y is equal to 1। so सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है x y, it is 2 1। अब इसके यानी यही क्वेश्चन मैंने 2 बार सॉल्व किया, पहले बार सॉल्व करने में और दूसरे बार सॉल्व करने में क्या फर्क है, दोनों भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड टाइम में हमने कैलकुलेशंस को मिनिमम रखने की कोशिश की, मल्टीप्लाई करने वाला नंबर एटसेट्रा, राइट। दिस इज आई वुड से वाइज मेथड। ये आना चाहिए आपको, ये समझ में आना चाहिए कि क्यों हम लोग एलसीएम यूज करते हैं और एलसीएम का फायदा क्या होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं समझता हूं आपको एलसीएम वाली बात ध्यान में आ गई। नेक्स्ट है 49x माइनस, तो इक्वेशंस लिख लेता हूं फिर से मैं, 49x माइनस 57y is equal to 172. I will call this equation 1. Then we have 57x minus 49y is equal to 252. This is equation 2. अब अगर हम यहां पर एलिमिनेट करना चाहे, सपोज मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं, तो पहले इक्वेशन को 57 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकंड इक्वेशन को 49 से। समझ सकते हो कैलकुलेशन कितने बड़े होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली इन इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ ढूंढ सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन कम हो सकता है क्या। हमेशा ध्यान में रखना, अगर इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन एक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किसी एक इक्वेशन का कुछ मल्टीपल दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करें, तो नया जो इक्वेशन आता है उसका भी सॉल्यूशन वही होता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इक्वेशन 1 + 2 करके देखता हूँ। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर लूँ तो 49 + 57 विच इज 106x माइनस 57 और 49 का फिर से एडिशन 106x इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, दोनों का एडिशन हो रहा है यहाँ पे 424। सो अगर मैं डिवाइड बाय 106 कर लूँ, so we get x, so okay, here we had y, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया शायद। ओके, so 106x minus 106y is equal to 424, dividing by 106 we get x minus y is equal to 4. This is equation 3. खास बात यह है
कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इसका भी वही सॉल्यूशन रहेगा, बिकॉज वी ऑब्टेन्ड दिस इक्वेशन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, राइट, द टू इक्वेशंस और मल्टीपल ऑफ टू इक्वेशंस इनटू ईच अदर, राइट। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब मैं एक और काम करता हूं, मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेता हूं। तो अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूँ तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 है, दूसरे इक्वेशन का निगेटिव, मतलब ये मैंने 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 लिखा था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर? सो 49 माइनस 57 इज माइनस 8x, राइट, माइनस 8x बिकॉज वी हैव 49 माइनस 57। नाउ सेकंड में भी कितना आया? माइनस 57 प्लस 14, दैट इज माइनस 8x अगेन इज इक्वल टू, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? 172 माइनस 252, करेक्ट, इट इज नथिंग बट माइनस 80। सो व्हाट वी गेट इफ वी डिवाइड बाय माइनस 8, वी गेट x प्लस, ओके सेम थिंग आई हैव डन, ओके यहाँ पर 8y चाहिए, ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ये मिल गया। सपोज मैं बोलता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 4। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये पहले दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन थर्ड का और वही सॉल्यूशन फोर्थ का रहेगा। तो अब मैं पहले दो इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थे उनको सॉल्व करूं या फिर उसके जगह पर ये दो नए इक्वेशन सॉल्व करूं, मेरा सॉल्यूशन सेम ही रहेगा। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, थर्ड और फोर्थ, राइट। सो व्हाट वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिंपली अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर लेता हूं तो वी गेट ट्वाइस x इज इक्वल टू 14 एंड हेंस x इज इक्वल टू 7, राइट। ये इक्वेशन 3 था हमारा, ये इक्वेशन 4 था, और मैंने यहां पर क्या किया? 3 प्लस 4 पुट इन 3, so 7 माइनस x इज इक्वल टू 4, so 7 माइनस 4 इज इक्वल टू x, x इधर लेके गए हम, y 4 को इधर लेके आ गए, so x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? सॉरी, I think I'm doing this kind of mistake again and again in this particular video. I hope you understand. यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 7 रख ली, y के जगह पर y रहेगा is equal to 4, so we have 7 minus 4 is equal to y, so y is equal to 3. And in this way we have solved the question and the solution is xy, right, is equal to 7, 3, or we can write x is equal to 7 and y is equal to 3. ये सॉल्यूशन निकालते वक्त क्या फंडा इंपॉर्टेंट था कि आप लोग सिंपलर वे से इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, राइट। अब हमने सिंपल बनाने के लिए जो कुछ भी सोचा उसमें आपकी थॉट प्रोसेस जरूरी है। एक और काम आप कर सकते हो, फाइनली जब आप आंसर निकाल लोगे तो ये x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो, सो दैट इफ वेदर इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन और नॉट, जिससे आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो आई होप you know now how to follow these methods. Here I want you to solve these two problems. ये सॉल्व करके देखो, 20a plus 12b is equal to 28, 4a plus 3b is equal to 13/2। ये एक सॉल्व करके देखिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए है 43x plus 47y is equal to 39 and 47x plus 43y is equal to 51। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे, राइट। यहाँ पर हम लोगों का जर्नल का एंट्री क्या हो सकता है? तो जैसे यहाँ पर हमने आज क्या सीखा, राइट, फिर से वही है, एलिमिनेशन मेथड में एलसीएम का यूज कैसे किया जा सकता है एंड हाउ टू सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम्स with large coefficients, correct. So these entries I would like you to make in your own words, okay। जो भी हमारे टेक्स्ट बुक्स के अच्छे वर्ड्स है वो यूज करो और लिखते रहो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बेसिक से उसको समझने की कोशिश करो, ओके।
All the best. Thank you.